Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's video. In this video, we'll start with our chapter number 1 of civics, which is all about democracy. In this chapter, we'll understand the concept related to democracy, what it is and how does the government in form of a democracy, how does it function. Now you must be wondering, what are all these people doing here standing together, right? So it is as much as clear after seeing this picture that democracy is nothing but the rule of people. Okay, so let's understand the meaning of democracy so the idea of these people standing together is clear to you all. Now coming on to the definition, democracy is nothing but it is a form of government in which the rulers are elected by the people. Okay, so all of us, we the people of our country, we all go and vote for our representatives and choose our representatives during the election. और उनको हम बोलते हैं रूलर्स. भाई इलेक्शन में हम किस पार्टी को वोट देके अपना एज अ representative choose करेंगे so that they can come and form the government and run the nation. Okay, therefore democracy क्या है? It is the form of government in which the rulers are elected by the people. Okay, now in simpler words it could be stated as it is the rule of people. लोगों का राज. कैसे? क्योंकि लोग ही वोट करते हैं और अपनी पसंद से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. Okay, so let's decode this word democracy. So democracy is the word which came from a Greek word demokratos. Demos means common people and kratos means strength. So democracy is derived from a Greek word which means common people strength. Okay, just some few more points regarding our nation, that India is the world's largest democracy, and in 1947 we the people of India got the right to vote and to elect our representatives. Okay, also this right to vote has given the citizens, every citizen of India, the right to vote. Okay, it means no matter the person is of what color, religion, caste or creed, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है. बस अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ही हैज द राइट टू वोट एंड राइट टू चूज देयर representatives. Now you guys must be wondering while studying the definition of democracy, who are these rulers, who forms the government, what kind of election happens, who are the people who elect the representatives, and what form of government is there in the democracy. So guys, let's study the features of democracy to understand the above question. Each and every question will be decoded now and you will get the complete meaning of the concept democracy. So coming on to the features of democracy, the number one feature is major decisions are taken by the elected leaders. When I say major decision, जो कोई भी फाइनल डिसीजन रहेगा या कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हु टेक्स द डिसीजन, इट इज द इलेक्टेड लीडर्स और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री. We the people of India go and vote and choose our leaders during election. So these are the leaders who are called the representatives of the people, and they as the representative of the people take all the major decisions. Okay, so leaders जैसे MP, MLA जिनको हम चूज करते हैं इलेक्शंस में, वही हमारे देश के लिए जो मेजर डिसीजंस है वही लोग लेते हैं. Okay, because in a very populated country, it is impossible for each one of us to go and participate in the decision making. Therefore, we the people of India choose our representatives. Okay, so that the decision making is the decision making will become a simpler process and the decision is taken quickly. So this was the example of India. Now there are some other countries where the situation is not the same. Okay, let me explain how. Let's take the example of our neighboring country, Pakistan. Okay, till 1999 there was a democratic form of government, but in 1999 their military corps named Pervez Musharraf
he came into the scene. So he overthrew the democratic form of government and elected himself as the chief executive of National Security Council. ये मिलिट्री वो में थे परवेज मुशर्रफ। इन्होंने क्या किया, 1999 में आके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तो हटाया और बोला कि मैंने खुद को इलेक्ट किया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड जितने डिसीजन लेने होंगे वो मैं लूंगा। ओके, देयरफॉर so from 1999 to 2002 many frauds happened, बहुत सारा घपला चला और फाइनली इन 2002 a legal framework order पास करवाया गया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और बोला यहाँ रूल ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिश होगा। ओके, सो जो गवर्नमेंट है आज ही पाकिस्तान में, वहाँ इलेक्शंस तो होते हैं, पीपल गो एंड वोट, लेकिन जो ये गवर्नमेंट है हियर इन पाकिस्तान, द गवर्नमेंट दैट द पीपल चूज हैव वेरी लेस पावर। ओके, बहुत ही लिमिटेड पावर है इनका, लिमिटेड रोल हो गया है एंड फाइनल पावर एंड द अथॉरिटी रेस्ट विद द मिलिट्री पीपल। ओके, तो आपको पता चला होगा जैसे कि डेमोक्रेसी के अंदर मेजर डिसीजंस कौन लेता है, एक इलेक्टेड लीडर लेता है। ओके, सो इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट केस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, हर डेमोक्रेसी का केस इन डिफरेंट कंट्री इज डिफरेंट। ओके, देयरफॉर हमें क्या पता चला अभी कि जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हो तो रहे हैं आज के दिन, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स हैव द लिटिल रोल, जो हम वहां के लोग उनके लीडर्स को चूज करते हैं उनका कम रोल है और फाइनल पावर किसके पास है, मिलिट्री के पास है। तो हमें पता चला डेमोक्रेसी इज नॉट द सेम इन एवरी कंट्री, बट एक कॉमन चीज इससे निकल के आई है कि डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हम किसको मानते हैं, दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पाकिस्तान के केस में परवेज मुशर्रफ जो भी उसने फ्रॉड वगैरह करके अपनी अथॉरिटी, अपना मिलिट्री रूल सेटअप किया है, वो भी लोगों की मंजूरी से ही करवाया गया। ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो हमें फीचर नंबर 1 ऑफ डेमोक्रेसी पता चला है कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर कहीं है तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास रहता है, नो मैटर विच एवर कंट्री इट इज। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है जैसे हमने इंडिया और पाकिस्तान के केस में पढ़ा, लेकिन इसका फीचर कॉमन ही है कि डिसीजन मेकिंग पावर हमारे इलेक्टेड पीपल्स के पास ही रहता है। After the very first feature of democracy, let's come on to the second feature. It says in a democratic form of government, there should be free and fair election. Okay, now let's understand what do we mean by free and fair elections. Okay, let's take the example of our another neighbor country called China. Okay, let's see. First we'll go through the example and by the end of this, we'll understand what is the meaning of free and fair election and is China a democratic form of government or not. Okay, so चाइना का केस लेते हैं क्योंकि हर कंट्री का हम केस लेंगे ग्लोबली सो दैट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। ओके, सो चाइना में इलेक्शंस हर 5 साल के अंदर होते हैं, every 5 year election is conducted there. Okay, so in this election 3000 members are chosen. Okay, and these 3000 members will now vote for the president. Out of this 3000 member जो चूज करते हैं इलेक्शन के बाद, उनमें से some are chosen by military also. Okay, and all of this 3000 member will go and vote for the president. Okay, so you guys must be thinking that China is a democratic form of government क्योंकि यहाँ तो लोग खुद जाके अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, फिर वो मेंबर्स आगे प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। बट देयर इज अ loophole here in this story. You need to listen to this story very carefully क्योंकि इन स्टोरी से भी काफी टाइम क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्यों हम चाइना को हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाइना में देयर इज अ कंडीशन क्या है, दैट द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और द अदर 8 स्मॉल पार्टीज विच सपोर्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देयरफॉर चाइना में अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो कैंडिडेट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से होना चाहिए। अगर वो उस पार्टी का नहीं है तो वो जो छोटी छोटी उनके देश में जो अलग से 8 पार्टी हैं जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट करती हैं, उसका मेंबर होना चाहिए।
देयरफॉर आपको क्या पता चला, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको सिर्फ एक दिखावे के लिए बताया गया है कि यू आर वोटिंग फॉर द पीपल, लेकिन चूज किस में से करना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि हमेशा जो सरकार है चाइना में वो किसने बनाई, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। ओके, सो इज दिस फॉर्म ऑफ इलेक्शन अ फ्री एंड फेयर फॉर्म ऑफ इलेक्शन? ऑब्वियसली नो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने बोल दिया इलेक्शन होगा, लेकिन तुम्हें चूज कहां से करना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। एनी हाउ कुछ भी कर लो, पार्टी रूल कौन करेगा, चाइनीज कम्युनिटी पार्टी। देयरफॉर चाइना इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So next we'll take the example of another country called Mexico. Okay, अब मेक्सिको में भी इलेक्शन एवरी 6 years होते हैं एंड दे चूज their president। हमेशा 1930 से लेके 2000 तक यहाँ एक ही पार्टी जीती है हमेशा। यहाँ तब की ओपोजिशन पार्टी भी थी, जैसे चाइना में तो ओपोजिशन नहीं थी, लेकिन यहाँ तो ओपोजिशन पार्टी भी थी। उसके बाद भी मेक्सिको में हमेशा PRI पार्टी का रूल आया। ओके, PRI पार्टी का मीनिंग है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। आप सोच रहे होंगे क्या क्या फुल फॉर्म है, उल्टी बनाई है इन्होंने, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, R फॉर रेवोल्यूशनरी एंड P फॉर पार्टी। आई डोंट नो व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दिस, बट हमेशा मेक्सिको में PRI का रूल आया। ओके, हम देखेंगे कि PRI हमेशा ओपोजिशन के होते हुए भी कैसे जीत रही थी। इसलिए जीत रही थी क्योंकि PRI ऑलवेज फॉलोड द फ्रॉड एंड डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। So now let's understand why the PRI party always won in Mexico. तो this is a probable question आ सकता है कि PRI पार्टी मेक्सिको की क्यों हमेशा जीतती थी। ओके, बिकॉज वो हमेशा डर्टी ट्रिक्स और फ्रॉड करती थी। कैसे? नंबर 1, ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड टू अटेंड द मीटिंग। जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनको जरूरी था कि हर जो वो मीटिंग रखती थी PRI उनको अटेंड करनी ही करनी है। सेकेंड, टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल फोर्स द पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। अब जो सरकारी टीचर्स थे जब पेरेंट्स मिलने आते थे उनको फोर्स करते थे भी तुम्हें किसको वोट करना है, सिर्फ PRI पार्टी को। फिर आता है रोल ऑफ मीडिया। एज यू ऑल नो, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज को अच्छा बनाने में और बुरा बनाने में। तो मीडिया ऑल्सो फोकस्ड ओनली ऑन द गुड वर्क ऑफ द पार्टी। ऑपोजिशन के सिर्फ बुरे काम और इस PRI पार्टी के सिर्फ अच्छे काम दिखाए। नेक्स्ट, पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड। अगर कुछ लोग ऐसे थे जो PRI को वोट नहीं करते तो वहां से पोलिंग बूथ ही ले जाते थे कि ताकि लोग वोट ही ना कर पाए। नेक्स्ट इज PRI पार्टी ऑलवेज स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी फॉर द कैंपेन पर्पस। देयरफॉर आपको पता चला कि मजबूरी का काम था मेक्सिको में भी। ओके, पीपल वर अलाउड टू वोट बट ओनली इन वन फेवर ऑफ PRI पार्टी। देयरफॉर यहां भी कोई हमारा फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या है, दैट इन एन डेमोक्रेसी इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर प्लस पीपल शुड हैव चॉइस टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सिर्फ ये नहीं भी एक ही पार्टी से चूज करना है, एक ही पार्टी को। लाइक इन केस ऑफ आवर इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। लोग जाके वोट करते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं और उनमें से अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अलग अलग पार्टी से डिफरेंट लोग खड़े होते हैं और उनमें से वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अनदर रीजन हियर इज अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तो इवन रूलिंग पार्टी विल हैव चांस टू लूज और इसकी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी और वन साइडेड हमारे रिजल्ट नहीं आएगा। देयरफॉर सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन plus people should have choice to elect their representatives. Okay, so the next feature of democracy is each adult have one vote and each vote has value. Like in India, we the individual people have one vote per person. Okay, and each vote has some value. हर आदमी की वोट की अहमियत है। ओके, इलेक्शन में सब लोग जाके वोट करते हैं, तब किसी पार्टी कोई जीतती है हारती है। क्यों हारती है? क्योंकि उनको वोट कम मिलते हैं, वोट की वैल्यू कम है उनके पास। ओके, देयरफॉर डेमोक्रेसी के अंदर हर एडल्ट के पास एक वोट होता है और उस वोट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग सेवरल एग्जांपल ऑफ आवर ग्लोबल कंट्रीज। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया में सबके पास राइट टू वोट है एक्सेप्ट फॉर वुमेन। सऊदी अरेबिया में विमेन हैव नो राइट टू वोट। क्या फिर हम सऊदी अरेबिया को बोलेंगे इज इट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वाई हम इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज women have no right to vote here. डेमोक्रेसी क्या बोलती है? Each adult, no matter what religion, caste, color or gender you are, okay? Each adult have one vote and each vote has some value. Whereas Saudi Arabia में women के पास ऐसा नहीं है. Therefore, this is not a democratic form of government. Now, taking another example of Estonia. Estonia में क्या है? जो लोग हैं वहाँ, ओके, जो लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली वहाँ के बाकी पॉपुलेशन से कम है. सो द पीपल ऑफ रशियन माइनॉरिटी हैव नो राइट टू वोट. सिर्फ मेजॉरिटी को ही वोट करने के लिए बोला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी क्लास लेते हैं, ओके, क्योंकि क्लास में लेट्स टेक द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द गर्ल्स, ठीक है. तो लड़के की क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है क्लास में, तो हम बोलेंगे बॉयज आर दी मेजॉरिटी, और लड़कियों की पॉपुलेशन क्योंकि कम है क्लास में, तो हम बोलेंगे गर्ल्स आर दी माइनॉरिटी. ओके, अगर मैं सारा डिसीजन लड़कों के हिसाब से लूं क्लास में, तो क्या वो एक फेयर डिसीजन होगा? नो, क्योंकि मैं सिर्फ मेजॉरिटी को फॉलो कर रही हूँ, माइनॉरिटी का तो मैं ध्यान ही नहीं रख रही हूँ, जबकि माइनॉरिटी इज ऑल्सो इक्वली द पार्ट ऑफ माई क्लास. ओके, therefore same was the case in the case of the country Estonia. वहाँ की सिर्फ मेजॉरिटी पे ध्यान दिया जाता था, और जो माइनॉरिटी थी these people have no right to vote, therefore they suffered. उनके कोई इंटरेस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं थी. ओके, now let's take another example of a country Fiji. Okay, here जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, फिजी के रहने वाले, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है देन कंपैरेटिवली टू द इंडियन फिजी. जो इंडियंस थे और अब जाके फिजी में बस गए हैं, उनके वोट से काफी ज्यादा वोट की वैल्यू है किनकी? पीपल ऑफ फिजी की. तो यहां से पता चलता है देयर इज नो इक्वल वैल्यू ऑफ वोट. ओके, हर डेमोक्रेसी क्या बोलती है? हर एडल्ट के पास वोट की होगी और हर वोट की वैल्यू इक्वल होगी और बराबर होगी. ओके, बट फिजी में ऐसा नहीं है. Therefore, you can figure it out. Third feature of democracy क्या है? Each adult have one vote and each vote has some value. Okay, not more than, not less than anyone. Everybody is equal. Okay, so third feature is also done. So let's come on to the next feature of democracy, which is the rule of law and respect for each other. पहले हम इंडिया की बात करेंगे. इंडिया में हमारा रूल ऑफ लॉ है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम चलते हैं. ओके, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, तभी हम एक इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होते हुए हम यूनिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर. ओके, तो नेक्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून को मानना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर, कोई कानून के आगे ऊपर या नीचे नहीं है, नो मैटर व्हाट डेजिग्नेशन द पर्सन इज होल्डिंग. ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर होनी चाहिए. ओके, ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सके विदाउट इन्वेडिंग एनी अदर पर्सन्स लाइफ. ओके, नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे में क्या हुआ? 1980 में जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंट. ओके, और 1980 में दिस पार्टी इन जिम्बाब्वे, ZANU PR पार्टी, was very famous and this party, इस पार्टी ने बहुत ज्यादा हेल्प की जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस अचीव करने में. ओके, इस पार्टी का लीडर was रॉबर्ट मुगाबे. He was the leader of this party. So लोग बड़ी इज्जत करते थे रॉबर्ट मुगाबे की, वाह इसने मदद की है और हमें इंडिपेंडेंस दिलवाई है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी लोगों के. इसलिए पीपल ऑफ जिम्बाब्वे हैज चूजन रॉबर्ट मुगाबे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ओके, but with time this president Robert Mugabe, he also start getting very selfish. Okay, selfish हो गए, और इन्होंने क्या सोचा? why not कि मैं हर अनफेयर मीन्स ऑफ इलेक्शन से हर साल अपने इलेक्शन जीतूं और रूल में आ जाऊं. ओके, तो इन्होंने काफी सारे अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस करने शुरू किए, ट्रिक्स एंड फ्रॉड किया. जैसे कि इन्होंने गवर्नमेंट में आते ही थोड़े टाइम बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया.
कंट्री के संविधान को बदल दिया और उसमें से सबसे ज्यादा पावर दे दी प्रेसिडेंट को और लोगों को पास कम पावर छोड़ दी। जैसे कि डेमोक्रेसी में लोग ही चूज करते हैं अपने रूलर्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इन्होंने क्या किया, लोगों से वो पावर कम करके और प्रेसिडेंट को खुद को ज्यादा पावरफुल बना लिया। ओके, ताकि कल को इलेक्शन हो तो लोग उनको उनकी कुर्सी से ना हटा सके। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ जिम्बाब्वे में उनको अपोज करते थे वो उनको हरास करते थे। उन्होंने बोला कंट्री में कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी, कोई भी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। टीवी रेडियो वगैरह पे जितने भी प्रोग्राम्स चलते थे दैट वाज गवर्न्ड बाय हिज गवर्नमेंट। ओके, सरकार ध्यान रखती थी टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है। और अगर सम ऑफ द पीपल हु अपोज और फिर भी नहीं मानते थे, दे वेंट एंड अप्रोच टू द कोर्ट्स देयर। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, उनकी कंट्री में भी कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम। दे वेंट टू द जुडिशरी टू सीक हेल्प। लेकिन यहाँ सरकार ने कोर्ट के डिसीजन को भी मानने को इनकार कर दिया। Therefore you can see this man who was a very बहुत ही मददगार साबित हुआ था जिम्बाब्वे के लिए। He got selfish and now started thinking about his own self interest कि उसको रूल में आना है। Okay, therefore will Zimbabwe be called a democratic form of government? No, क्योंकि यहाँ ना तो रूल ऑफ लॉ है, प्रेसिडेंट ही सुप्रीम था यहाँ, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, फ्रीडम नहीं थे, फंडामेंटल राइट जो बेसिक राइट होनी चाहिए लोगों को लाइफ में वो भी यहाँ नहीं मिलती थी। Therefore you can understand in a democratic form of government another very important feature is there should be rule of law and respect for each other, तभी जाके एक democratic form of government बनती है। So guys, as we are done with the democracy concept and the features of democracy, it's time to tone your brain. Number one question for the day is define democracy. Second is give me the features of democracy. Third is why did the party PRI party always won? PRI पार्टी कौन सी कंट्री से है आपको पता होगा ये। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज चाइना अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इफ यस, स्टेट व्हाई, इफ नो, स्टेट द रीजन। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ। Before that, please do not forget to like, share and subscribe to my channel, and most importantly comment down all the questions in the comment section, and do not forget to press in the thumbs up icon. I will see you very soon in my next video.